बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज ये सरप्राइज टेस्ट सीक्वेंस से हटके, जैसे कि आपको स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है, कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर 1। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं ऑलरेडी आपको पेपर स्कीम के अंदर जो बता चुका हूँ, और कौन कौन से चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर अपना कितना हिस्सा डालते हैं ये भी हम लोग जो है वो पेपर स्कीम के अंदर पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक जो है वो पेपर स्कीम नहीं समझी और वो समझना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें, और वहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर की पेपर स्कीम के नाम से एक लेक्चर पढ़ा हुआ है। इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो स्टूडेंट आज का ये टेस्ट आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 चीजों पर मुश्तमिल होता है और हर चीज का एक नंबर होता है, और यूं टोटल इस हिस्से के 15 नंबर होते हैं जिसको हम मारूजी हिस्सा भी जो बोलते हैं। तो आज का ये जो टेस्ट है ये इस क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर जो तैयार किया गया है, जो कि पूरी बुक के अंदर से है और तरतीब के मुताबिक है, जो तरतीब आपको स्कीम के अंदर बताई गई है। तो बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ए डेटा सेट। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डेटा सेट। इसमें से कौन सी चीज है जो डेटा सेट के तौर पर जानी जाती है? रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या मॉड्यूल। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज डेटा सेट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल और मॉड्यूल। देन question number 2, a two-dimensional table of data is called, a two-dimensional table of data is called group, set, module or relation. Two-dimensional table of data is called group, set, module or relation. Then question number 3, an advantage of partitioning is, an advantage of partitioning is efficiency, extra space, reliability or accuracy. So question number 3 was, an advantage of partitioning is efficiency, extra space, reliability or accuracy. Then question number 4, two or more attributes with a different name but same meanings create a problem. Two or more attributes with different names but same meaning create a problem. Number 1, homonyms. Option number 2, aliases. Option number C, synonym. या option number D, modality. Two or more different attributes with a different name but same meaning creates a problem. Homonyms, aliases, synonyms, modality. Then question number 5, the output of a query is in the form of a, the output of a query is in the form of a table, form, query or report. The output of a query is in the form of a table, form, report or query. Then question number 6, what is the default field size of a text data type field? What is the default field size of a text data type field? 2, 5, 20 or 50. What is the default field size of a text data type field? 2, 5, 20 or 50. Question number 7, which error is not detected by the compiler? Which error is not detected by the compiler? Syntax error, logical error, both A and B or none.
Which error is not detected by the compiler? Syntax error, logical error, both A and B, or none. Question number 8. The output of the compiler is called. The output of the compiler is called library code, source code, linked code, or object code. The output of a compiler is called library code, source code, linked code, or object code. Which of the following have the highest priority? Which of the following have the highest priority? This one, option number A, option number B, option number C, और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसमें आपने ये निशान जो बना लें अपने पास, क्योंकि लास्ट में आंसर की के अंदर आपको निशान बताया जाएगा कि इसमें से एग्जैक्ट निशान जो है वो कौन सा है जिसकी प्रायोरिटी जो सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए का निशान, ऑप्शन नंबर बी का निशान, ऑप्शन नंबर सी का निशान, या ऑप्शन नंबर डी का निशान। देन क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन 10 मॉडुलस 3 हैज अ वैल्यू इक्वल टू। The expression 10 modulus 3 has a value equal to 1, 3, 8, or 2. Then question number 11. The general form of the format specifier for floating point value. The general form of the format specifier for the floating point value. M.N percentage, M percentage dot NF, percentage M dot NF, M dot N percentage F. The general form for the format specifier for the floating point value. इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपने लिखना है। Question number 12. An ampersand before the name of a variable denotes. The ampersand before the name of a variable denoted by actual value, variable name, address, or data type. An ampersand before the name of a variable shows या denotes actual value, variable name, address, or data type. Question number 13. What does a compound condition use to join two conditions? What does a compound condition use to join two conditions? Relational operators, logical operators, relational results, logical results. तो इसमें से आपने देख लेना है वो ऑप्शन जो ठीक है वो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 14. One execution of a loop is known as. One execution of a loop is known as cycle, duration, iteration, or test. One execution of a loop is known as cycle, duration, iteration, or test. Then final question of today's test. Formal argument is also called. Formal argument is also called actual arguments, dummy arguments, original arguments, or reference arguments. Formal arguments are also called actual arguments, dummy arguments, original arguments, और रेफरेंस आर्गुमेंट्स। तो स्टूडेंट ये देखा, ये आज का हमारा जो टेस्ट था जो कि 15 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था। होप सो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर ना सिर्फ अपना रोल नंबर एक तरफ लिख दिया होगा बल्कि टेस्ट नंबर भी उसके ऊपर लिख दिया होगा और अपना नाम भी उसके ऊपर मेंशन कर दें और एक कोने में आपने जो ऑब्टेन मार्क्स आप जो हासिल करेंगे वो लिखेंगे और देन फाइनली आपने उसी तरह जैसे आपने बाकी मानदा टेस्ट को अपने फोल्डर में लगा के रखा हुआ है जो कि छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह लजीज जो चेक होगा उस फोल्डर के अंदर ये टेस्ट भी आपने जो नथी कर देना है।
तो होप सो आपने अपने आंसर लिख लिए होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आंसर की तरफ। तो आंसर की के मुताबिक आपने अपने आंसर जो है वो चेक करने हैं और देन मार्क्स लगाने हैं, और अपने मार्क्स और अटेंडेंस आपने यूट्यूब चैनल के वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखने हैं। स्टूडेंट, जो बंदा वहां पे अटेंडेंस नहीं लगा रहा, इसका मतलब है वो लेक्चर नहीं सुन रहा, दूसरे का कॉपी कर रहा है, तो लिहाजा उसको एब्सेंट सबर जो वो किया जा रहा है। तो लिहाजा अपनी अटेंडेंस जो है मेक श्योर करें कि आप वीडियो के कमेंट्स में जरूर लगाएं। तो पहले का जवाब था फाइल, दूसरे का जवाब था रिलेशन, तीसरे के लिए सही ऑप्शन था एफिशिएंसी, चौथे का सही आंसर था सिनोनिम्स, पांचवें का सही आंसर था टेबल, छठे का सही जवाब था 50, सातवें का सही जवाब था लॉजिकल एरर्स, कंपाइलर जो है वो लॉजिकल एरर्स को तलाश नहीं कर सकता, आठवें का जवाब था ऑब्जेक्ट कोड, नौवें का जवाब था ये जो साइन है जिसको हम एक्सक्लेमेशन साइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। 10 का आंसर था 1, 11 का आंसर था परसेंटेज m.nf, 12 का आंसर था एड्रेस, 12 का आंसर क्या था एड्रेस, 13 का आंसर था लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, 14 का सही आंसर था आइट्रेशन, आइट्रेशन, और आखिरी जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर था डमी आर्गुमेंट्स। तो स्टूडेंट, अगर आपने किसी की किस्म की कटिंग की है तो वो नंबर आप अपना जो काटेंगे, क्योंकि बोर्ड जो कटिंग को नहीं मानता। तो इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि एग्जैक्टली जब तक सही आंसर आपके जहन में ना आए उसको टिक जो है वो मत करें। तो ये था आज का टेस्ट। होप सो टेस्ट का ये तरीका भी आपको जो है वो पसंद आया होगा। इससे पहले हम शीट्स को सामने रखते थे और वहां से मैं क्वेश्चन बोलता था, वो क्योंकि हम एक थारोली जो स्टडी कर रहे थे, तो अब हम जो पढ़ रहे हैं फाइनल अपने फिनिशिंग टच की तरफ, तो लिहाजा अब एमसीक्यूज का टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह अजीज इस तरह लिया जाएगा, स्कीम के मुताबिक लिया जाएगा कि अगर किसी चैप्टर में से 2 एमसीक्यू आने हैं तो उसमें से 2 ही जो है वो लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था आज का टेस्ट। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे नंबर जो गेट किए होंगे, अपने मार्क्स जो है वो शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।